वेलकम फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 13, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेल मेरे बच्चों, सबसे पहले हम आपको थोड़ा बेसिक बताएंगे कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट्स क्या होते हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो हमारा पहला टॉपिक है टीआर, दैट्स टोटल रेवेन्यू, टीसी दैट्स टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। So what is firm's profit? Well, the amount that the firm receives for the sale of its output obviously is called total revenue. The amount that the firm pays to buy inputs is called total cost. तो मेरे प्यारे बच्चों, profit is the difference of TR and TC. तो अब हम यहाँ पे कॉस्ट की बात करते हैं. व्हाट इज कॉस्ट? वेल, कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. मेरे बच्चों, आप अकाउंटेंट के नज़रिए से भी देखना कॉस्ट क्या होती है और इकोनॉमिस्ट के नज़रिए से भी देखना कि कॉस्ट क्या होती है. So cost as opportunity cost. When economists speak of a firm's cost of production, they include all the opportunity cost of making its output of goods and services. इसका क्या मतलब है बच्चों? मैं एग्जाम्पल से भी सिखाता हूँ आपको. When a firm pays to say workers to make some goods, the wages are part of total cost. Since these costs require the firm to pay out some money, they are called explicit cost. Why they are called explicit? Because they are explicitly shown in the books of accounts. By contrast, some of the firm's opportunity costs called implicit costs do not require a cash outlay. Imagine that the owner is skilled with computers and could earn rupees 100 per hour working as a programmer. So for every hour that the owner works at her factory, she gives up rupees 100 in income, and this foregone income is also a part of her cost. The total cost of owner's business is the sum of the explicit and implicit cost. ये जो implicit cost है मेरा बच्चा, इसके अंदर एक्चुअली में आप एज अ फर्म कोई कैश पे नहीं कर रहे, आउटसाइडर को कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हो, बट एज एन इकोनॉमिस्ट हम इस कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे. द कॉस्ट और द इन दिस केस द इनकम विच यू कुड हैव अर्नड अगर आप फैक्ट्री में काम ना कर रहे होते तो बच्चा कहता है सर ये तो मतलब जबरदस्ती का, ये देखने की क्या ज़रूरत है. मैं आपको बताता हूँ इसकी भी ज़रूरत क्यों होती है, या एज एन इकोनॉमिस्ट हम ऐसा क्यों देखते हैं. The distinction between explicit and implicit costs highlight the importance of the difference between how economists and accountants analyze a business. Economists are interested in studying how firms make production and pricing decisions. Because these decisions are based on both explicit and implicit cost, economists include both when measuring a firm's cost. By contrast, accountants have the job of keeping track of the money that flows into and out of the firms. As a result, they measure only the explicit cost and they often ignore the implicit cost. यानी अकाउंटेंट सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट देख रहा है, इकोनॉमिस्ट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों देख रहा है. आइए कुछ और इस पर बात करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपके लिए ये. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर द ओनर ऑफ अ फैक्ट्री एंड ओनली वन वर्कर वर्क्स फॉर यू, ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लिया, और फॉर यू एट रुपीज़ 100 पर डे. नाउ फॉर दैट वन डे यू कुड ऑल्सो वर्क समवेयर एल्स एंड अर्न रुपीज़ 500 अ डे. सो इन दिस केस एज पर एन इकोनॉमिस्ट टोटल कॉस्ट है एक्सप्लिसिट 100 जो आप वर्कर को दे रहे हो, 500 द इनकम विच यू कुड हैव अर्न, दैट इज 600. वाइल फॉर एन अकाउंटेंट वो तो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट देखेगा, उसके लिए कॉस्ट है ओनली रुपीज़ 100. सो वाई इकोनॉमिस्ट थिंक लाइक दैट? भाई इकोनॉमिस्ट को क्या पड़ी है कि ऐसे भी कॉस्ट को देखें जिसको जो इम्प्लिसिट होती है. So an economist will count the foregone income as a cost because it will affect the decision that the owner makes in her business. For example, if owner's wage as a computer programmer, suppose उसको 100 मिलते थे, वो बढ़कर 500 हो गए per hour, she might decide that running her business is too costly and choose to shut down the factory to become a full-time computer programmer. तो आपको आपकी opportunity cost भी देखनी पड़ती है बेटा, उसके बेसिस पर आप decision ले पाते हो whether you want to continue in your current business or not. नाउ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये एक और एग्जाम्पल है इम्प्लिसिट कॉस्ट का. An important implicit cost is the opportunity cost of the financial capital that has been invested in the business. Suppose, for example, the owner uses 3 lakh of her savings to buy her factory. If she had invested this money in savings account that pays at an interest rate of 5%, she would have earned 15,000 per year. To own her factory, therefore, she has given up rupees 15,000 a year in the form of interest income. This foregone rupees 15,000 is again one of the implicit cost.
To further explore the difference between economist and accountant, suppose the owner did not have the entire 3 lakh to buy the factory but instead used rupees 1 lakh of her own saving and borrowed rupees 2 lakh from bank at an interest rate of 5%. Owner's accountant, who only measures explicit costs, will now count rupees 10,000 interest paid on the bank loan every year as a cost because this amount of money now flows out of the firm. By contrast, according to an economist, the opportunity cost is still 15,000. How? Well, the opportunity cost equals the interest on bank loan, that is explicit cost of 10,000, plus the foregone interest on saving, that is 5,000. तो बेटा इकोनॉमिस्ट का जो नज़रिया है वो काफ़ी ब्रॉड है, अकाउंटेंट का नज़रिया सिर्फ कैश बेसिस पर है, और इसकी वजह से अकाउंटेंट का प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा दिखेगा और इकोनॉमिक्स का प्रॉफिट या इकोनॉमिस्ट का प्रॉफिट आई शुड से वो कम दिखेगा। आइए इसके बारे में हल्का फुल्का हम बात कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात की जाए, ये टोटल रेवेन्यू है, तो उसमें से एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी हटेगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी हटेगी, फिर जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रॉफिट। लेकिन अगर अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, ये टोटल रेवेन्यू है, खाली एक्सप्लिसिट कॉस्ट हटेगी बेटा, एंड यू विल बी गेटिंग अ मेजर चंक एज योर प्रॉफिट। तो बच्चे कहते हैं सर कौन सा सही है? वेल दोनों सही हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो शटडाउन या बिजनेस कंटिन्यू करना है नहीं करना, उसकी डिसीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं जी प्रोडक्शन फंक्शन एंड टोटल कॉस्ट। वेल प्रोडक्शन फंक्शन शोज द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब मेरा बच्चा, जो आपको कन्वेंशनली सिखाया गया है ना आपके बेसिक्स में, मैं पहले वो बना देता हूँ, नहीं तो जो रीडिंग्स में है ना वो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है। आपको कुछ कुछ ऐसा सिखाया गया आपके बेसिक जो इंट्रोडक्शन, जब आपने प्रोडक्शन का कहीं पर भी किया होगा, आपको सिखाया गया ये है लैंड, ये है लेबर, ये है एमपी, ये है टीपी 1 1 1 1 1 1 1 फिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एमपी 2 3 4 3 2 1 0 -1। इसको आपको बोला गया फेज़ 1, फिर इसको बोला गया फेज़ 2, इसको बोला गया फेज़ 3, और इसको ऐड करके टीपी निकाल लिया 2 5 9 12 14 15 15 14। ऐसे ही किया था ना कुछ? अरे सर ये तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है। हाँ हाँ ऐसे ही किया था ना कुछ सर, इसमें एपी भी आता था। अरे एपी भी निकाल ले यार, कोई बात नहीं, टीपी बाय एल, ठीक है। इसकी शक्ल कैसे बनती थी? ऐसे, ये देख ऐसे, ये टीपी, ठीक है, एमपी, एपी यहाँ से, ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3, ठीक है। पर मैं तेरे को बता दूं, जो रीडिंग तू पढ़ रहा है ना बेटा, उसके अंदर इम्प्लाइड माना है कि सिर्फ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, ठीक है। तो इस पे बेस चलेगा, ये खाली डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। सो वर्कर्स 0, पहले वर्कर्स पे फोकस करते हैं। वर्कर्स 0 1 2 3 4 5 6। अब खाली एमपी को देखो आप, 50 40 30 20 10 5, खाली डिमिनिशिंग रिटर्न्स दिखा रहे बेटा। एमपी को ऐड करा, टीपी आ गया, ठीक है। अब एक कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, ये फिक्स कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ वर्कर ये वेरिएबल कॉस्ट है। आप देख सकते हैं ये फिक्स है तो ये सेम ही रहेगी, और वेरिएबल कॉस्ट आप देख लीजिए वो भी हमने समवट एक ही उसमें बढ़ा दी है। तो ये आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट। सो नोटिस दैट एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस फ्रॉम 50 to 40 to 30 एंड सो ऑन। माइंडेड, ये अज्यूम टेबल है, आपकी रीडिंग्स में ये है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद इट। सो वर्कर्स एमपी जो कि डिमिनिशिंग है, टीपी उसको क्यूमुलेटिव बना के, फिक्स कॉस्ट एक ही वैल्यू, वेरिएबल कॉस्ट हमने बढ़ाई है बट कांस्टेंट बढ़ाई है जो कि एजम्पशन है, और टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरे बच्चों आपको जो समझनी है बात वो देख लीजिए, वो है मेरे बच्चों कि आप अगर इसको प्लॉट करते हैं दिस प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट, तो वो कैसा दिखेगा? तो प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा और कॉस्ट कर्व ऐसा। जबकि मेरे बच्चों आपका जो टोटल कॉस्ट कर्व होता था, जो आपने बेसिक जहाँ सीखा था, वहाँ ऐसे बनवाया गया था आपको कि ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और ये टोटल कॉस्ट है, रिमेंबर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ना ऐसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स डिक्रीजिंग रिटर्न दोनों आते थे, यहाँ पे खाली डिमिनिशिंग रिटर्न है बेटा, इसलिए ऐसा दिख रहा है। खाली एक तरह से ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा वेरियस मेजर्स ऑफ कॉस्ट, अगेन उसी असम्पशन के साथ काम करे जा रहा है यहाँ पर। क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 6। अब मेरे बच्चे ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट। अब एक्चुअली में आपको समझना होगा। आप बताइए डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ रहे हैं? हाँ जी आ रहे हैं बेटा। डिमिनिशिंग रिटर्न में अगर तूने बेसिक्स अच्छे से सीखे हुए हैं तो मैं तुझे बता दूं, डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर कॉस्ट बढ़ते जाती है। डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर
एक्स्ट्रा लेबर के साथ कॉस्ट बढ़ती जाती है, वेरिएबल कॉस्ट। तो देख पहले 0.5, फिर 1, फिर मतलब फिर 0.7, फिर 0.9, ऐसे फिर 1.1, फिर 1.3, ऐसे बढ़ती जा रही है बेटा। अज्यूम्ड वैल्यूज़ है, लेकिन ट्रेंड ऐसा है कि जैसे जैसे लेबर की क्वांटिटी बढ़ रही है या आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, दोनों से टीसी आ गया। एएफसी एफसी बाई क्यू, एवीसी वीसी बाई क्यू, एसी टीसी बाई क्यू या एएफसी प्लस एवीसी, एमसी इस वीसी का डिफरेंस। देख लो आराम से, ये बिल्कुल बेसिक है। और इसका वीडियो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बेसिक कॉस्ट का, जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है। आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, उसमें आप जा सकते हो क्लास 11 कॉस्ट में, उसमें आपको दिख जाएगा वो बेसिक, अगर किसी को नहीं आते, जो साइंस बैकग्राउंड से अगर बचा हो तो कॉस्ट कर्व अगर ये वाला बनाना है तो ये ऐसा दिखेगा, ये वाले को प्लॉट करेगा तो ऐसा दिखेगा, टिपिकल ऐसा होता है मेरा बच्चा। दोनों में मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्रॉसेस द एटीसी कर्व एट इट्स मिनिमम सिंस एट लो लेवल्स ऑफ आउटपुट एमसी इज लेस देन एसी, सो एसी इज फॉलिंग बट आफ्टर द टू कर्व्स क्रॉस एमसी राइजेस अबव टीसी। अब मेरे बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ लॉन्ग रन कॉस्ट। मेरे बच्चों सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट, उसमें मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है ये, बट अभी थोड़ा सा सिखाते हैं आपको। देखो बच्चों, ये है एलएसी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और इसी के अंदर हम बनाएंगे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जो कि वैसे यू शेप होता है, SAC1, SAC2, SAC3। ठीक है। अब एक चीज़ है जो आप नोटिस नहीं कर रहे हो। नहीं सर मैं नोटिस कर रहा हूँ, सब नोटिस कर रहा हूँ। नहीं कर रहा बेटा। क्या नोटिस नहीं कर रहा सर? बेटा ये मिनिमम के लेफ्ट में, ये मिनिमम पर है और ये मिनिमम के राइट पर है। नहीं कर रहा था तूने ये नोटिस। ठीक है। अच्छा, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3। देखो बच्चों, लॉन्ग रन जो है ना, लॉन्ग रन कॉस्ट, ये भी यू शेप है लेकिन थोड़ा सा फ्लैट है बीच में। ऐसा क्यों होता है वो भी बताते हैं। ये जो हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं ना बच्चों, ये इतना हिस्सा दिखाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये दिखाता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और ये दिखाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होते हैं ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओ और आपको कॉस्ट कम हो जाए। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होते हैं ड्यू टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है बेटा, आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, आपकी कॉस्ट बढ़ जाए। ठीक है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है। अब मेरा बेटा आप समझिए इसका यूज़ क्या है। मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये इतनी डिमांड है 40 की, तो आप प्लांट 1 में प्रोड्यूस करना चाहोगे SAC1 या प्लांट 2 में? सब प्लांट 1 में, बिल्कुल। ठीक है, ये यूज़ होता है लॉन्ग रन का। आपकी रीडिंग में बहुत थोड़ा सा दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है। और मैं आपसे फिर विनती करूँगा कि जो बेसिक कॉस्ट का है, मैंने 3 से 4 वीडियो डाले हुए हैं, पहले वो देखना, फिर ये देखने में मज़ा अलग ही आएगा आपको। ये तो था डेरिवेशन ऑफ LAC। मैं और भी कुछ सिखा देता हूँ, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, बट कर लो, क्या दिक्कत है। अब मैं आपको सिखाता हूँ, ये आपका अगेन LAC, ये है SAC1, ये है SAC2, ये है SAC3। ठीक है जी, Q1, Q2, Q3। सर ये तो सेम है। अरे रुक जा, अब मैं सिखाता हूँ डेरिवेशन ऑफ LMC। बच्चों ध्यान से समझना, SMC SAC को हमेशा उसके मिनिमम पे कट करता है। तो ये हो गया SMC1। डर जाने वाले हो तुम अब जो मैं बनाऊंगा। ये इसके मिनिमम से गए SMC2, और ये इसके मिनिमम से गए SMC3। ठीक है, मैं डेरिवेशन ऑफ LMC सिखा रहा हूँ। अब ये पॉइंट देखो, इसको बोलते हैं पॉइंट 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3। बताओ 1, 2, 3 में क्या कॉमन है? सर MC क्वांटिटी को इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, इसको ज्वाइन करो, और ख़तरनाक चीज़, दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ LMC। सिर्फ शौक के लिए करा दिया मैंने तेरे को ये यार। हाँ ये बात है, अगर पेपर में आ गया तो अकेला ही बना रहा होगा भाई। तो ये था डेरिवेशन ऑफ LAC, ये है डेरिवेशन ऑफ LMC, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी सिखा देता हूँ यार। लग गया डेरिवेशन ऑफ LTC भी सिखा ही देता हूँ यार।
देखो बेटा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट तो होती नहीं, तो ये ऐसा बनता है एल टी सी। ये हो जाते हैं आपके एस टी सी वन, ये हो जाता है एस टी सी टू, और ये हो जाता है एस टी सी थ्री। ठीक है, ये सर बनाया क्या है आपने बेटा? ये मैंने ये बनाया ये सर लॉन्ग रन में। इधर से क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती। अब एक चीज़ नोटिस करना, एल ए सी एंड एल टी सी, इसको बोलते हैं एनवलप कर्व। एनवलप कर्व क्यों बोलते हैं? बिकॉज शॉर्ट रन का कोई भी पार्ट इसके नीचे नहीं होता। आप देखो उसी के अंदर बना हुआ है, इसमें भी एल ए सी में भी देखो उसके अंदर ही बना हुआ है, कोई नीचे नहीं आ रहा। लेकिन एल टी सी को नहीं कहते, एल एम सी को नहीं कहते, क्योंकि एस एम सी उसके नीचे आ रहा है। ठीक है, मैंने एंड का तेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, आई नो उनको यूज़ नहीं है तेरे को, लेकिन पहले मेरे बेसिक वीडियो देखियो फिर ये देखियो तो तेरे को समझ आ जाएगा। अब तेरी रीडिंग इतनी बेकार बनी हुई है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं भाई, तेरी रीडिंग में जो है वो तो पढ़ाना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल ही बेकार एक्सप्लेनेशन है, एजम्पशन बेस्ड एक्सप्लेनेशन है, तो वही मैंने तुझे अभी सिखाई, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया अपनी तरफ से।